by citing myself. I am a boy or a man belonging to very ordinary family, most ordinary family. And after completion of graduation, my father was a court employee. He retired as the Sessadar of a district court. And perhaps due to persuasion of my father, as my father injected me rather to show interest in this line, I took admission in a law college. So I was hearing about showing in the dream to compete through CLAT to get your admission in very many lucrative colleges, lucrative education institutions. But to my view, yes, if you get the admission through CLAT, fine. Otherwise, don't get frustrated if you fail to obtain any chance in any such lucrative college through CLAT examination. There are so many colleges at present. Get your admission wherever you prefer. But I shall stress over one letter D, one for discipline and the other for devotion. These two are much more related to each other. If you can place yourself in the disciplined education system, coaching system, for which Saket, in collaboration with Muslim Institute, is before you, and if you can devote yourself by heart, by mind, then I believe that there is nobody to derail from your aim. In our business particularly, we are passing through very hard days, hard political days rather. So, we have to be motivated to some extent, to some great extent. Sorry. So why so? Because I was hearing my previous speaker was telling like that representation in every sphere, I repeat, is very much necessary at this moment in the present days. So now there are very many missions, very many coaching centers. They have come over. By stretching their hands, you have to simply avail of that opportunity. Yes, after being law graduate, there will be nobody to take away your right to practice in any court. There are so many other avenues. You may be judge, and I am giving you some data that for upgradation of your career as faculty member, you may complete fellowship to use the title doctor. You may opt for being full-time lecturer. Even without hampering your profession as an advocate, you may be attached to any law college or university as part-time or guest lecturer on any law subject you think yourself a specialist. If some of you opt to join in judicial service, then after first promotion and on completion of 7 years service with reputation, you will get opportunity to sit in the written examination to be conducted by High Court for becoming a judicial officer in the rank of district judge. Further, an advocate
if he joins in any bar association of High Court and completes continuous 10 years practice with eminence and reputation, then as an eminent jurist, said advocate may have avenue to be selected or elevated as High Court judge. Likewise, the eminent advocate of High Court among the senior district judges, some of them in view of seniority and performance throughout their career, reputation, etc., are selected as High Court judge. That apart, a law graduate may opt for becoming law officer for which all corporate sector is open. Now, all corporate sector has opened such a broad and lucrative avenue for legal luminaries that you cannot imagine at this stage. Any corporate sector is not running without opening a legal cell manned by legal luminary. So my friends, I hope that all of you, being now aspirants of your career management in law, must be disciplined, coupled with devotion. So as I was telling about myself, I was a man of very ordinary family, and I joined in law education in Jogesh Chandra Chaudhary College of Law. That was a very ordinary college like all others prevalent at that time. But I was really frustrated that with whom I was being taught by the teachers. There's so many retired persons, that so many aged persons. With them, I'm to join in the class. So really, that was a great point of frustration at that moment to me. But I realized myself that I am to overcome from this mental frustration, and that is why I started my preparation in other end by going to National Library, which was very near to my residential place. Because why? So because as academician, I am to prepare in my own way, within disciplined manner, and by devotion. There is no other alternative. And I came out, and previously, as my previous speaker also said in that manner, I am repeating that in Bengali, that Jarnai Kunogoti Sheikore Okaloti. But the present concept is not there. Present concept is very, very, very at the high level. You have to avail of that. So, I am not taking much time because practically everything has been said before you. Sorry, I missed myself. But when I started my practice in a district court on 4th January 1981, then I started practice giving full devotion by attending the chamber of my senior with great devotion. So you have to also take that in mind, that if you want to join in professional career, then you have to be attached with senior, and not only that, without wasting time anywhere. If you have no personal work, then please attend any court to hear the hearings or the deliberations making by the lawyers in court. This will be helpful. And one more thing, when you will be completing your final year in law, then the period after that final examination until getting the license from the Bar Council,
don't waste also that time in vain. You just be attached with any senior. So that time you'll feel that time how in what way you have utilized and how you have gained by devoting that time during that period. So I am not taking much time. Thank you very much for giving me honor to be with you. I hope all of you are, I think, well, and you have the time to listen to what I have to say. It's very simple. And I just, first of all, I want to find out how many of you are going to come for this crash course. Put your hands up. Okay, good. So how I see what put up your hands up, okay? Yeah, I can see there are more girls, less than the boys. I want more boys. I tell you, there's a reason for it. Because you boys are the breadwinner of the family. So if you're not going to work for your family, then for whom are you going to do that for? So it is important for you to start working as a lawyer. You do what you want to do, but I must say, but as a lawyer, if you want to enter into the course, yes, Sarfaraz will help you, will guide you. I know him for so many years, and he's a very, very nice guy. But जज्बा जो होता है सरफराज नहीं कर सकेगा, वो आपके अंदर में होने से आना चाहिए. It should come from within. The jazma is yours, not ours on this side. No, none of us can do that for you. Only you can do it for you. And that is important for me. That is why I feel you guys, you people, are important for me. Yes, you will, you go for the crash course, very good. But one thing I must tell you, you must be very honest. Simple, and you must understand your client. जो आएगा आपके पास केस के लिए, अंदर से उससे बात करना, समझना कि वो उसका, देखिए, there was one gentleman, he's from the government of West Bengal. I don't know, he was wearing that green shirt, okay, and he said that his father started a case, okay, the father died and the case went on, but I don't know what the lawyer did, why it took so many years, I really don't know, मुझे नहीं पता, पर मुझे जानना है कि आपको रिलीफ देना है अपने क्लाइंट के लिए और जल्द से जल्द वो मरे नहीं जाए. Not kill him. I'll tell you a story. I'll give you two stories. There was a gentleman, and I think one of the advocates will bear me my story. You knew Piyush Dotto. उसका एक केस था, मुझे I don't know, but he was a मुसलमान, उसका प्रॉपर्टी था, वो बेचारा मर गया, क्लाइंट मर गया, बिकॉज वो ऐसा उसको फ्रीज किया, इतना पैसा लिया, इतना, वो भाग गया, वो मर गया, ऊपर चला गया. So don't do that. जो बंदा है आपके पास आया है उसको मारना मत प्लीज. That is important for you. Because मन सेंसिटिव बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू फीलिंग, देखिए आपका केस नहीं है, किसी और का है, पर आप उसके शो में चले जाना. समझना चाहिए कि वो कौन सा प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आया है, और अगर आप उस जगह में खड़े होते
तो आप क्या करते? तो ऐसा नहीं कि उसको बेचारा को खत्म कर दिया, उसको ऊपर भी भेज दिया, पैसा भी चला गया, बिकॉज ये स्टोरीज है, ये स्टोरीज है। और मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि भैया जो भी काम करो लिल्लाह काम से करना, ये नहीं मत सोचना हम हाँ देखिए, आप कई लोगों ने बहुत अच्छा बात बोला, पर हम वैसे नहीं हो। आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम डिफरेंट। हाँ, when I came into the profession, I still remember somebody paid me only 3 GMs. 3 GMs was 51 rupees. But I needed that money. I needed that money. So don't say I'm not being magnanimous. हम दानी नहीं हैं, हम काम करने आए थे, हमको पैसा चाहिए, सिंपल। तो हाँ, वो आदमी आप बोलेगा हमको 1000 रुपीज देना है, वो बोलेगा सॉरी भाई मेरे पास उतना नहीं है, हम 500 रुपया देंगे। तो हाँ, एडजस्ट कर लीजिए उसके साथ। आपका किस्मत कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता, इसीलिए मेरा नेक्स्ट स्टोरी है किस्मत को लेके। आई वॉज वेरी यंग, मेरे मम्मी एंड डैडी का मुशायरा दे वुड लव टू गो, सो आई हैड गॉन विद देम। एंड वो जो लेडी के घर में हम थे, तो मम्मी ने डैडी को बोला कि लेट्स गो होम बिकॉज उसकी स्कूल है कल। तो वो ओल्ड लेडी बोली उसको बैरिस्टर बनाना है क्या? तो मम्मी समझी नहीं, हम तो बहुत छोटे थे, पर हमको पता नहीं मेरा जो किस्मत कहाँ से लेके गया। I had nothing to do after I finished my studies in Loreto. I was waiting and I said what to do. But I said no, I have to do something because I cannot sit. I cannot sit for 1 minute also. मुझे कुछ ना करना ही पड़ेगा. You know, I get irritable. So I said okay. So let's go find out. So what to do? Let's go and do law. So I went into law school. I did that. And then after law school, I said, अब क्या करेंगे? तो मेरा friend, we are family friends of Mr. Kapoor, S.K. Kapoor. So I have to look them. Yeah, please go. So I went to him. He said, पहले तो वो हमको अटेंड नहीं करते थे, हम उनको पूछते थे हमको मिलना है आपसे, बोला अभी टाइम नहीं है। अरे हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, हम लोग कौन सा कॉन्फ्रेंस है? एवरीडे कॉन्फ्रेंस। मुझे तो समझ में नहीं आता था। हमने वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, वो शायद होटल में जाता होगा, ग्रैंड होटल में और पार्क होटल में, बोलते ना भाषण देते होंगे, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। बाद में फिर जब हमको बुलाए कि तुम आओ, हम गए, बोले सुनो 6 महीने के बाद हमको तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है। हम बोले क्यों? बोले कोई लेडी 6 महीना के ज्यादा नहीं रहेगी हाई कोर्ट में। हम बोले ठीक है देखेंगे, हम वैसे मुंहफट है, सीधा बात। So I told him that. Then I still continued. So he was looking at me and then he would say, अभी भी हो यहाँ पर? I said, जी. I never told him anything. I went. I went my way, he went his. And I stuck. Till 2018 I retired. See, आपका किस्मत कहाँ से आपको कहाँ लेके जाएगा, आपको खुद को पता नहीं है। तो यही हम आपसे बोल रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं कि देखिए आज आप एक पाथ, रास्ता लिए हैं, जाइए, देखो क्या होगा, देखा जाएगा। So it's a challenge for you, for the men, for the
boys and the girls. It's a big challenge and I want you to face that challenge. जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. मम्मी बोलेगी, I tell you, I have gone from my chamber. हम काम करते थे रूमा पाल और सरफराज नोज एंड मिस्टर पाल. मुझे 12 बजे हम पहुंचते थे घर में अकेले, और मम्मी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन घर में घूमती रहती थी. अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी. तो you have to face all kind of problems, but you have to stick. वो कौन सा मूवी था, मुन्ना भाई? नो, चले नहीं. हाँ, that is what I'm saying. You just get in it and go on and on and on. And I tell you one thing. You see, hard work will always give you results. And होगा ही होगा. आज आपको मिलेगा 1000, कल आपको 10,000 मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको 1 लाख मिलेगा, नेक्स्ट डे 1 करोड़. पर गरीब आदमी के लिए थोड़ा सहानुभूति रखना और थोड़ा पैसा सरफराज के चैरिटेबल ट्रस्ट को भी देना. That is important, because I tell you, see, आप इस क्रैश कोर्स में आए हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं. आप पैसा, वो कुछ नहीं दे रहा आपको. He doesn't want anything from you. वो कुछ नहीं चाहता है. इतना तो आपने इंसानियत होनी चाहिए. 10 रुपया तो उसको दे दो. इसलिए क्योंकि जो, देखिए, आपको पता नहीं कौन सा बंदा आएगा या कौन लड़की आएगी, उसका भी किस्मत खुल जाएगा. एंड ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपका किस्मत कहां से कहां लेके जाएगा मुझे पता नहीं है. बट आई टेल यू एक चीज, मन हमेशा साफ रहना चाहिए. Honesty is very important. I know somebody said I was very strict. Yes, I was very, very strict, and I could fire people. Straight. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. या इस पार जाओ, उस पार करो, तुम मरो या जियो, हमको क्या लेना देना, तुमने गलत काम किया. तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने मन में. यही हम आपको बोलना चाहते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ सरफराज's guidance. I'm sure you'll do very, very well. All the best for all of you. Thank you. इसके बाद चीफ गेस्ट वगैरह सब आपसे बात करेंगे. आज का ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आज जो हमारे बच्चियां यहाँ पर जो लोग दाखिला लिए हैं हायर सेकेंडरी के बाद 5 साल का जो लॉ का कोर्स होता है, पहले इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, पर लास्ट 10, 12, 15 साल से काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है. तो काफी सारे बच्चे एग्जाम देते हैं और जो टॉप रैंक में रहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, जिसका रैंक टॉप में रहता है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है. तो लेकिन वो कॉम्पिटिशन्स काफी है पहले के जमाने में, और इस कॉम्पिटिशन्स में जहां भी उनको एडमिशन मिल जाए, इसको सहूलत करने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. तो हम लोग का मकसद ये है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, बच्चों के अंदर में अवेयरनेस ला सकें. तो इसी तर्ज में हम लोग व्यवस्था 2007 में साकेत का बुनियाद पड़ा, हम लोग ट्रस्ट बनाए थे तुपसिया में, और उसके बाद से ही हम लोग लगातार जब से ये कोचिंग शुरू हुआ है, इंट्रेंस शुरू हुआ है, उस वक्त से हर साल ही कोचिंग ये करते आए हैं. तकरीबन फ्री कोचिंग शुरू से ही आज तक वो फ्री कोचिंग ही रहा है हम लोगों का. कुछ थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह लेते हैं, और इसी में एक तर्ज है कि वो हमेशा तोपसिया में करते थे. पर लास्ट 2 साल से, लास्ट ईयर हम लोगों ने एक समचुला रोड में शुरू किया था, और उसके बाद ये प्लान हुआ कि नहीं, सेंट्रल कलकत्ता के इलाके में अगर यहाँ करते हैं तो बहुत सारे बच्चियां फैजाब होंगे इस कोचिंग से. तो ये इसी तर्ज में एक है कि हम यहाँ पर एक
छोटे से ग्रुप को 30, 35, 40 जो बच्चे भी हमारे एडमिशन लेते हैं उनको तैयारी करेंगे। पर मकसद जो इससे काफी बड़ा है, मकसद सिर्फ ये है कि 40 बच्चों को तैयारी करने का नहीं, मकसद ये है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी उसी वक्त डेवलप कर सकता है जब उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में उनके आबादी के मुनासिबत से हो। तो हमारा वो रिप्रेजेंटेशन खासकर जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी उनका नहीं है। तो हम जब लॉ पढ़ते थे उस वक्त हमारे कॉलेज में हो सकता था 2% मुस्लिम बच्चे रहते थे, आज वो बढ़ करके 5%, 5.5%, 6% हुआ है। लेकिन सही मानों में अगर हम जो भी बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो गैप तो काफी है, डिफिसिट काफी है, और ये डिफिसिट को उसी वक्त पूरा कर सकते हैं जब हम सब मिल करके इस कोर्स के बारे में, इसके अवेयरनेस लोगों के अंदर तैयारी करें। क्योंकि हम लोग बहुत से वक्त में एक जो उम्र होता है 10 के बाद जब 12 जाते हैं, उस वक्त हमको गाइड नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हम वो फैसला नहीं ले पाते। कभी हम दूसरा कोर्स में ले लेते हैं, जनरल कोर्सेज ले लेते हैं। गलत नहीं है, कोई ग्रेजुएशन करते हैं, उनका शौक है वो करें, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स का जो एडवांटेज हमेशा होता है कि इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है वो आप दे सकते हैं। किसी को बीसीएस करने का शौक है तो वो करे, यूपीएससी करने का शौक है तो वो करे। दूसरा है कि कुछ और भी नहीं हो तो ये तो प्रोफेशनल कोर्स हैं। यहाँ पर कम से कम इस प्रोफेशंस में रोजी रोटी का बच्चों का रास्ता कुछ ना कुछ बना रहता है। तो जो भी वकला हैं उनका जो तादाद है वो सब आज के डेट में एक वाहिद कम्युनिटी है जिनके नाम के आगे जब कोई पिटिशन वगैरह देखेंगे लर्नेड लिखा रहता है। तो जैसे आप वो एलएलबी पास कर गए, आपके नाम के आगे लर्नेड लिखा हुआ, तालीम याफ्ता आप हैं। इसका वजह यह है कि वकालत पढ़ने वाले एक वाहिद कम्युनिटी है जिनको किसी भी समाज में इंसाफ नाइंसाफी का जो टच है वो सबसे पहले लॉयर्स के पास में आता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमेशा से जो कानूनदां हैं वो हर इन नाइंसाफी के खिलाफ आगे रहे हैं, चाहे वो दुनिया का जो भी कोना हो। इसका वजह यह है कि जो लॉ पढ़ते हैं उनको ये इम्तियाज होता है, उनको जानकारी होता है क्या हक है क्या ना हक है। लेकिन इस फील्ड में अगर हमको जो है यहाँ पर, तो हमको रोजी रोटी के लिए लाने के लिए, प्रोफेशन में आने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो हम लोग की एक छोटा सा कोशिश है कि हम लोग लॉ प्रोफेशंस के बारे में लोगों में जानकारी और बढ़ाएं। लॉ में और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, हम लोग जानते हैं, क्लैट की एग्जामिनेशन होती है। हमारी अपनी मजबूरी हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उस कोर्स में काफी फंड लगता है। लेकिन हम लोग जो और दूसरा ये भी है कि हमारे जो बच्चे उर्दू मीडियम से पास कर रहे हैं, बंगाली मीडियम से पास कर रहे हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनके लिए क्लैट कॉम्पीट करना भी काफी दुश्वार, हम नामुमकिन नहीं बोलेंगे, काफी दुश्वार होता है। तो आज भी बच्चे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ करके कामयाब हो रहे हैं, हर फील्ड में वो लोग हैं, हर जगह मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जहां पर ये बड़ा आसानी से बच्चों को मिल जाता है, एक प्रोफेशन की तरफ वो रागी हो सकते हैं, उस प्रोफेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश है कि उस बच्चों के अंदर भी बेदारी लाएं कि क्लास 12 के बाद ही आप लॉ ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत सारे गेस्ट हमारे सामने हैं, पर सिर्फ ये बताएं कि लॉ एक वाहिद पेशा है जहां पर लॉ पढ़ने के बाद में आपकी जो भी ड्रीम्स हो वो हर ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हैं। हमारा लॉ का स्टूडेंट है जो आज जर्नलिज्म कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल में जो स्टार स्पोर्ट्स है वगैरह में, वहां पर हमारा लॉ का स्टूडेंट्स है। उबेर का लीगल हेड लॉ का स्टूडेंट्स है। अब दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, वो लॉ के लोग ऐसे हैं जो हर फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को टीचिंग का शौक है तो आपके पास ऑप्शंस है, आप बीएड करें, स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा ऑप्शंस है। लेकिन आप मास्टर डिग्री करें, नेट का एग्जाम दें, प्रोफेसर बन सकते हैं। हमारे साकेत का ही स्टूडेंट्स है, समीर यहाँ पर है, किंगस्टन लॉ कॉलेज में वो भी पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है। एक और प्रोफेसर यहाँ पर है, जेवियर्स कॉलेज से प्रोफेसर हैं। तो आपके पास ये ऑप्शंस है। लॉ एक वाहिद प्रोफेशन है जहां पर आपको अगर प्रोफेशन में जाना है आप प्रोफेशन में जाएं, आपको टीचिंग में जाना है आप टीचिंग में जाएं, आपको बीसीएस करना है डब्ल्यूबीसीएस करें। हमारे साथ में हमारे दोस्त एहसान अली हैं, वो बीसीएस ऑफिसर हैं, तो लॉ पढ़ करके वो बीसीएस एग्जाम्स क्लियर किए थे और अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। तो ये ऑप्शन है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन ओपन है। हर कंपनी के पास में अपना एक लॉ ऑफिसर्स होता है, हर कंपनी को जनरल काउंसिल की जरूरत पड़ती है, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लॉ ऑफिसर की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आप का जो मौके काफी हैं। तो हम सिर्फ ये इतना कहना चाहेंगे, जो लोग आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो बच्चे खास करके यहाँ पर हैं, एडमिशन लिए हैं, आपसे मुलाकात मेरी होगी, हम आपको पढ़ाएंगे भी, एक सब्जेक्ट हम भी पढ़ाएंगे, तो आपसे बात होगी। हम ज्यादा वक्त आज नहीं लेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने जो फैसला किया है
कि लॉ को की एंट्रेंस की तैयारी करेंगे और लॉ एग्जाम देंगे, हमारे लिहाज से आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। कभी भी आप ये बिला झिझक ये ना सोचें कि लॉ फैसला हमारा गलत हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत से वक्त में ऐसा होता है कि कोई लड़की खास कर, क्योंकि हमारे बच्चों में ज्यादातर लड़कियां हैं जो लोग एडमिशन लिए हैं, और सिर्फ यहाँ का नहीं, हर कोचिंग में यही नजर आ रहा है कि ज्यादातर 65-70% लड़कियां होती हैं। तो और जब लड़कियां वो घर में जाकर गार्जियंस को बोलती हैं हम लॉ पढ़ेंगे, तो एक पहला रिएक्शन आता है लॉ तुम क्या करोगी। पर जो गार्जियन हजरात यहाँ पर हैं उनको ये भी बताना चाहते हैं कि लॉ जो है सिर्फ ऐसा आज के डेट में नहीं है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकती हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस सभी कर सकती हैं। आपके सामने में काफी सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोग प्रैक्टिस करती हैं। आपके ये जो कोर्स होगा, इस कोर्स में 2 लोग इसको कोऑर्डिनेट करेंगे साकेत की तरफ से। शबनम यहाँ पर है, शर्मीन है, शबनम प्रैक्टिस करती है हाई कोर्ट में, शर्मीन जस्ट लॉ पास कंप्लीट करने जा रही है। तो काफी सारी लड़कियां आज के डेट में हर फील्ड में लॉ में काफी सारी लड़कियां आ रही हैं। एक तो 10 साल पहले का माहौल या 15 साल पहले माहौल अलग था, जहां पर आपको सीनियर लड़कियां कम मिलती थी। पर आप जब कोर्ट में जाएंगे 5 साल के बाद में, तो आपके लिए सीनियर लड़कियां भी काफी मिलेंगी, सीनियर लेडीज लड़कियां मिलेंगी आपको। और एक ऐसा माहौल नहीं है कि सिर्फ लड़के नजर आ रहे हैं कोर्ट के अंदर में, ये माहौल चेंज हो रहा है। यकीन जानिए, अभी जो जुडिशियल एग्जामिनेशन हर साल होता है, ये जुडिशियल एग्जामिनेशन में जो पास करने वाले जजेस का तादाद है वो लड़कियां ज्यादा है। तो लड़कियां जिस तरह से हर फील्ड में आगे आ रही है, जुडिशरी में भी आगे आ रही है, तो ये भी आपका कैरियर ऑप्शन है। जो जज बनना चाहती हैं वो जज बन सकती है लॉ पढ़ने के बाद में। तो काफी सारा कैरियर ऑप्शन है, इसके बारे में आपसे बाद में हम लोग बात करेंगे। पर ये जो आपने फैसला किया लॉ का एंट्रेंस देने का, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और हम लोग आपके साथ में हैं। आइए, जो मौका आपके पास में है, आइंदा 2-3 महीने का टाइम है, हम लोग कोचिंग कराएंगे आपको यहाँ पर, और आप लोग इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोग पास करेंगे एग्जाम्स में, एडमिशन आपका होगा। आपके और भी कोई दोस्त हैं, करीबी ताल्लुकाती हैं जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनको भी आप लेकर के आए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सपोर्ट दे सकें और इस लॉ कोचिंग में वो शामिल हों और इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉलेजेस हैं, जब आपसे अलग से बात करेंगे हम लोग बताएंगे। जैसे हमारे पास अभी बहुत सारे कॉलेजेस नया शुरू हो रहा है। अभी इस साल से लॉ का प्रोग्राम मनु शुरू किया है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। जिन बच्चों को फिलअप करना है 24 तारीख 24 मई तक डेट है उसका, आप फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कैंपस है मौलाना आजाद जो उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का है। तो ये फिक्र ना करें कि हम कलकत्ता साइड से बाहर जाएंगे। हैदराबाद शहर के हिसाब से काफी अच्छा शहर है। मौलाना आजाद मनु का कैंपस काफी बड़ा है, क्या हॉस्टल वहां का इंतजाम है, जो वहां प्रोफेसर्स हैं हमारे ताल्लुकात के, हमारे बड़े भाई की तरह जो है वो डीन है। तो इस तरह के और भी मौके हैं। अलीगढ़ का मौका चला गया है, जामिया मिलिया इस्लाम में चला गया है। हम लोग जो तैयारी करेंगे सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो हमारा टारगेट है, इसके अलावा भी जेवियर्स कलकत्ते में काफी अच्छा कर रहा है। जेवियर्स यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो वक्तन फौक्तन आपको हम बताएंगे कि आप कहां पर वो फॉर्म फिलअप करें और एडमिशन लें। तो ये मौके आपके सामने में है। अब आपको ये फैसला करना है, आप सही फैसला किए हैं। गार्जियंस को सभी को ये बताना चाहते हैं कि कभी भी ये बच्चियां आपकी या बच्चे जो फैसला कर रहे हैं कि वकालत की तरफ जाएंगे, उनको डिस्करेज मत करें। यकीन जानिए काफी अच्छा प्रोफेशन वो बच्ची चूज कर रही है। आज के बच्चे वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं और काफी कैरियर ऑप्शंस यहाँ पर है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं बच्चियां, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाना है। कोर्ट में बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका हक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में काफी सारा जो वर्क है वो कोर्ट के बाहर भी होता है। मीडिएशन है, कॉन्सिलिएशन है, आर्बिट्रेशन करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्शन में जॉब करते हैं, लॉ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। यूपीएससी वगैरह में लॉ वाले हर साल बच्चे, आप यूपीएससी का लिस्ट निकाल के देख लें, हमारे एनयूजीएस के स्टूडेंट हर साल कोई ना कोई बच्चा निकलता है यूपीएससी में, इस बार भी निकला है। तो वो लॉ करके यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपके सामने में है, आपको चूज करना है। वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि हम आइंदा 5 साल के बाद या 7 साल के बाद हम कहां रहेंगे। अगर ये डिटर्मिनेशन आपके पास में है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये काफी अच्छा प्रोफेशन है। तो यही बात बोलते हुए हर एक जगह में लॉ आपके जिंदगी में मतलब आप डूबे हुए लॉ में, इसलिए ये प्रोफेशन जो है बहुत डायनेमिक है। ये प्रोफेशन वैसा प्रोफेशन है, मैं किसी प्रोफेशन को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर्स अपने जगह में बहुत नोबल काम करते हैं, जिंदगी बचाते हैं लोगों के। इंजीनियर्स का अपना काम है, टीचर्स के अपने काम है, बिजनेसमैन का अपना काम है। लेकिन बीइंग अ लॉयर मैं जो फील करता हूं कि आप रोजाना जब शाम को घर आएंगी
तो आप एक नया चीज सीख कर आएंगे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगेगा कि अरे मैं तो आज सुबह गई थी तो कुछ मैं नया सीखा, मैं घर कुछ नया हुआ। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जब आप किसी को उसका हक दिलाएंगे, जब आप कोई केस जीत कराएंगे। फीस इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्लीज पैसे के लिए सिर्फ लॉ मत कीजिएगा, पैसे के लिए सिर्फ लॉ मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। अभी ईशान भाई बोल लेते कुछ नहीं करता तो 400 रुपये एफिडेविट में कमा लेता है। द इम्पोर्टेंट है जब आप बिस्तर पे सोएंगे, आराम करेंगे और आप जब सोचेंगे कि हमने एक किसी को हक दिलाया, कोई एक मुकदमा जीता, किसी को मैंने राइट दिलाया, वो जो सुकून की नींद आपको आएगी, वो जो आपको एहसास होगा उस वक्त कि आज हमने जिंदगी में कोई अच्छा मकसद किया, कोई अच्छा काम किया है, वो मजा इसका अलग ही है। लॉ को आप उस नजरिए से लीजिए। लॉ एक ऐसा फील्ड है आज के दिन में, इस कंट्री में, हिंदुस्तान में, मेरे हिसाब से दो फील्ड को मैं बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, दो फील्ड को मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। एक है जर्नलिज्म और एक है लॉ। लॉ और जर्नलिज्म दो एक ऐसा फील्ड है जो आपके डेमोक्रेसी को, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आपके हक को, इसके लिए जो लड़ाई करता है। जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लॉ का भी। ये दो ऐसा चीज जो आज बहुत जरूरत है इस कंट्री में। सच्चा ट्रू जर्नलिस्ट, सच्चा लॉयर अगर होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ जाता है, अपने हक के लिए लड़ जाता है। तो लॉ को प्लीज सिर्फ इसलिए मत ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, बस पैसे कमा लेना है और हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बहुत अच्छा चेम्बर हो जाएगा, बहुत अच्छा एसी घर हो जाएगा। दिस शुड नॉट बी द मोटिव टू बिकम ए लॉयर। नाउ अभी मैं ये कह रहा था कि मैं बाकी हमारे स्पीकर्स को सुन रहा था। आई ऑल्सो वांट टू लिसन टू माय सीनियर जजेस आर हियर। इस प्रोफेशन में लॉ के बाद आफ्टर पासिंग लॉ आपके पास दो तीन स्कोप है। एक तो सबसे बड़ा स्कोप है कि आपको अगर जॉब करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ जज, तो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं। एग्जाम दीजिए, पास कीजिएगा, यू विल बिकम अ जज, यू विल स्टार्ट लाइक अ जुडिशियल जूनियर डिवीजन जज सिविल में, या अगर आप क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। वो एक स्कोप है। आप चाहे तो, जैसे मुदस्सिर साहब बैठे हुए हमारे छोटे भाई हैं, तो आई नो हिम पर्सनली, ही वाज इनिशियली प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, तो लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बन सकते हैं आप। कॉर्पोरेट में आपके बहुत सारा स्कोप है। अभी उन्होंने कहा सरफराज साहब ने, उबर के लीगल हेड जो है वो लॉयर है। कॉर्पोरेट में अच्छा स्कोप है, आपको वहां नौकरियां मिल जाएगी। और तीसरा जो है, जो मैं करता हूं, जो मेरी प्रैक्टिस है, दैट इज अ लिटिगेशन। लिटिगेशन हुआ कि मैं किसी के अंडर में मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। आई एम नॉट वर्किंग अंडर एनी कॉर्पोरेट, एनी, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। लिटिगेशन का मतलब हुआ कि मैं केस लड़ता हूं, मैं क्लाइंट का ब्रीफ लेता हूँ, दे पे मी, मैं केस लड़ता हूं। तो इसका लिटिगेशन की एक अलग दुनिया है। अब लिटिगेशन में भी देयर आर वेराइटीज। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप अभी ज्वाइन कीजिएगा, यू वांट टू डू एलएलबी। लिटिगेशन में बहुत सारे फील्ड है। बेसिक जो हम लोग जानते हैं कि ये क्रिमिनल लॉयर है, ये सिविल लॉयर है, लेकिन वो क्रिमिनल लॉयर है उसके भी काफी स्कोप है। जो सिविल लॉयर है उसमें बहुत सारे वेराइटीज है। सिविल लॉयर में फॉर एग्जाम्पल कोई टेनेंसी लॉ करता है, कोई कंज्यूमर कोर्ट करता है, कोई लैंड का मैटर करता है। आप समझ रहे क्या बोला चाह रहे? कोई आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए सिविल प्रोसीडिंग, कोई आर्बिट्रेशन करता है, ये अभी लेटेस्ट चल रहा है। कोई टैक्स करता है। तो इसके भी बहुत सारे मतलब डाइवर्स फील्ड है। ऐसा नहीं कि यू आर एकदम कन्फाइंड कि आप सिविल लॉयर का भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, उसकी भी स्पेशलाइजेशन है। इवन इन क्रिमिनल लॉ ऑल्सो देयर आर लॉयर हु आर एक्सपर्ट इन एनआई एक्ट, सिर्फ चेक बाउंसेस से ज्यादा केसेस करते हैं। देयर आर लॉयर हु आर एक्सपर्ट इन नार्कोटिक केसेस। देयर आर लॉयर हु आर सेशंस ट्रायल लॉयर, जो ट्रायल करते हैं, जो एविडेंस लेते हैं, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पूरा अपना उनको कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में ट्रायल होते हैं, वो ट्रायल के एक्सपर्ट होते हैं। देयर आर लॉयर जो हाईकोर्ट में फिर क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी बहुत सारा वैराइटीज होता है। क्वॉशिंग है, रिवीजन से, बेल मैटर है, तो इसमें बहुत सारे वैराइटीज है। तो आपका स्कोप काफी खुला हुआ है। तो आपको सोच के जब आप लॉ कंप्लीट कीजिएगा तो डे वन से मेरा मशवरा रहेगा कि आप जब लॉयर बनकर आइएगा तो ये मत डिसाइड कीजिएगा डे वन से आई वांट टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर, नहीं मैं सिविल करना। मेरा जो मशवरा रहेगा, बीइंग आप अपने एज अ सीनियर समझ सकती है, क्योंकि हमारे अंडर भी बहुत सारे जूनियर्स काम कर चुके हैं। पहला 5 साल आप हर एक फील्ड में काम कीजिए, सिविल भी कीजिए, क्रिमिनल भी कीजिए, देन यू डिसाइड यू वांट टू कंटिन्यू जैका फॉल, या आप चाहेंगे नहीं हम इस पे स्पेशलाइज करना चाहते हैं। इसमें स्कोप है काफी लिटिगेशन में। उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देयर आर ट्रिब्यूनल्स, जैसे वकफ ट्रिब्यूनल है, आसान में जानते हैं,
वकफ केसेस होते हैं, वकफ के जो एक्सपर्ट वो केस करते हैं। देयर आर लैंड ट्रिब्यूनल्स, देयर आर कंज्यूमर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, देन नेशनल कंज्यूमर कोर्ट इन दिल्ली। तो इसके बहुत सारे स्कोप है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना फोकस कीजिए, डिग्री कंप्लीट कीजिए, इसमें आप प्लंज ले लीजिए। लॉ में जब ज्वाइन कीजिएगा, यू टेक अ प्लंज, इस पे आप डूब जाइए, तब आपको बहुत मजा आएगा। इट्स अ वेरी वेरी डायनेमिक फील्ड। ये एक ऐसा फील्ड है, आपको एक तरह का ना, आपको बहुत नशा टाइप का लगेगा, बहुत मजा आएगा इसको काम करने में। इसको इस तरह से मत किए कि बहुत सारे काम होते हैं, एक ही तरह का काम है। ऑफिस जा रहे हैं, ये काम है, वो काम, 1 2 3 4 घर आ गए। ऑफिस जा रहे हैं, 1 2 3 4 घर आ गए। इसमें वैसा नहीं है। इसको मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, डायनामिज्म इसमें बहुत है। रोज कुछ नया, रोज कुछ नया, रोज कुछ नया, रोज कुछ नया। आप समझ रहे हैं ना, जिंदगी पे कितना आपका वो रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सॉरी टेकिंग सम मोर टाइम, कि आप तो ऐसी भी आप लोग को एक बड़ा मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमारे जस्टिस नादिरा पटेल इज देयर। ये तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आई हैव सीन हर व्हेन शी वाज प्रैक्टिसिंग लॉ इन हाई कोर्ट। जब हमने ज्वाइन किया था 97-98 में, आई हैव सीन हर एंड आई हैव सीन हर बीइंग एलिवेटेड। वो जज बनी, देन डिवीजन बेंच में गए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी वाज अ वंडरफुल जस्टिस। एंड बड़ा थोड़ा सा वो भी था कि लोग थोड़ा सा लॉयर लोग घबराते भी थे इनके कोर्ट में जाने में। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। एक दो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में हम लोग फंस गए थे, तो मेरा जो क्लाइंट था बेचारे का पसीना निकल रहा था, उनको कोर्ट में खड़ा कर दी थी। आई स्टिल रिमेम्बर, कोर्ट नंबर 8 में। तो एनीवे, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि लॉ को, ये बात भी सही है सरफराज भाई ने कहा, जब शुरू में ब्रिटिश एरा में लॉ जो था एकदम एक्सक्लूसिव डोमेन था, नवाब और जमींदारों का था। उस जमाने में जो लॉ करते थे, बड़े बड़े घर के लोग, बड़े बड़े जमींदार लॉ करते थे, यूके जाते थे, वहां से पढ़ के आते थे। जनरल जो लोग थे, इंडियंस थे ब्रिटिश एरा भी, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, काफी हद तक पूरा लॉ के बारे में सोच नहीं पाते, तब कैपेसिटी भी नहीं था। धीरे 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 लॉ जो है वो आस्ते आस्ते लोगों के बीच में आया। और अब तो खैर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जवाहरलाल नेहरू साहब, दे वर ऑल लॉयर्स। उनके फादर वाज अ ग्रेट लॉयर, मिस्टर मोतीलाल नेहरू। इवन जिन्ना साहब आल्सो वाज अ वेरी ग्रेट लॉयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हिज उनका वो था, बट ही वाज अ वेरी ग्रेट लॉयर। उनके बहुत सारी स्टोरीज है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। एकदम हिम्मत मत हारिए, एकदम हौसला रखिए, और ये जो मौका आपको सरफराज साहब इनकी टीम दे रही है, नासिर साहब की टीम दे रही है, इसको पूरा का पूरा आप लोग हासिल कीजिए, अवेल कीजिए, कोशिश कीजिए। और कहा ना, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, जरूर अल्लाह ताला जो है आप लोगों का ख्वाब को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। ये बोल के आप दे दीजिए। क्षमा, आप भी आइए। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नईम अहमद सर गुजारिश है, स्टेज पे तशरीफ लाए, स्टेज पे तशरीफ लाए। शेख अंसार अली, आप आकर के सर की बेद का हामिल है। और आज के इस जलसे की तहरीक जो है हमको डॉक्टर सरफराज खान से मिली थी। आज से कुछ दिन पहले जब वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस बात को छेड़ा था कि हम हमारे यहाँ लॉ जानना बहुत जरूरी है, कानून की पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सारे स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के हालात में, आज के सिनेरियो में। और उन्होंने कोशिश ये की थी, मशवरा भी ये दिया था कि आप लोग जो है इस काम को करें। जो लड़के हायर सेकेंडरी वगैरह पास कर रहे हैं, उन लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेज भी है, कोर्स भी चल रहा है, तो उसमें दाखिला मिल सकता है। और फिर उसके बहुत स्कोप है, बहुत सारी उसमें ऐसे मामला हैं जहाँ पर उसकी तरक्की बहुत कम वक्फे में बगैर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के भी हो सकता है। तो ये उनका मशवरा बहुत सही था। तो हम लोगों ने इस पर बहुत ही गौर करना शुरू किया। तवील गुफ्तगू हुई उनसे, कई बार मीटिंग हुई, और इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि आज हमारे नासिर अहमद साहब जो जलसे की सदारत कर रहे हैं, साकेत चैरिटेबल ट्रस्ट के वो चेयरमैन हैं, तो उनके तामुन से, उनके इश्तराक से हम ये जलसा कर पा रहे हैं आज। तो इस जलसे को इस तरह मत लीजिए कि और जलसों की तरह हम आए गए चले गए, बल्कि इसमें बहुत सारा मैसेज हमारा जाएगा आपके तक, आपको उसको पहुंचना, आप तक पहुंचेगा वो मैसेज।
और अब उस मैसेज पर आपको अमल दरामद करने की जरूरत है कि हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो क्या काम है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सारे मशवरे आपको मिलेंगे, तमाम गाइडेंस आपको मिलेगा। हम तो कोर्स शुरू कर रहे हैं इसी मकसद के तहत, और ये कोर्स शुरू करने का मकसद कोई प्रॉफिट नहीं है मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कि हम इस कोर्स के जरिए कुछ मनी अर्न करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को जो इसमें जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं उनको मुस्लिम इंस्टीट्यूट अपने खर्च पर कोच करेगा। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस है, बाकी सब तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट बियर करती है, तमाम करता है अखराजात इसके। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं वो कारआमद साबित हो, बल्कि हम जिनकी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को हम तैयार करना चाहते हैं, वो अपने आइंदा दिनों में अपनी इस तैयारी को लेकर के जिंदगी के दूसरे रास्तों में अपना खुद रास्ता तयन कर लें और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें। रहा हमारा ताल्लुक, जो हम तो गाइड करते रहेंगे उनको, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये उनको भरपूर तरीके से, और सरफराज खान साहब तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारे सालेहीन साहब बहुत एक्टिव एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, और उनके मिजाज में भी ये सारी बातें हैं, वो करना है। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आपने अपनी बहुत ही मसरूफियत के बावजूद ये लॉ के एंट्रेंस की जो कोचिंग होने वाली है उसकी शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तकरीबन 12-13 कॉलेजेस हैं जिनके अंडर में जो एफिलिएटेड है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1600-1700 सीट्स है यहाँ, जिन कॉलेजेस में एडमिशन होता है एंट्रेंस टेस्ट के जरिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कोचिंग करेंगे तो शायद इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और ऊपर की तरफ रैंक करेंगे तो अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिले, जहां पर सरकारी कॉलेजेस में खर्च भी कम होता है। तो गाइडेंस दे रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमेशा इनकी सरबराही के लिए, इनकी मशवरे के लिए हम लोग मौजूद रहते हैं। तो आज इस कोचिंग का अफ्ताह है। हमारे दरमियान बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। एक के बाद एक हम चाहेंगे कि फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद साहब से कि वो हमारे आज चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस नाज़िरा पथरिया मैडम का इस्तकबाल उत्तरीय और फूलों का गुलदस्ता और मेमेंटो से करें। ख़ातिन हज़रात, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। निसार साहब सर इस तरफ कैप लगा करके आप खूबसूरत लग रहे हैं सबको लेना चाहिए।